Hello everyone, welcome to my channel English Vlog. Today I will describe the play The Monkey's Paw. The Monkey's Paw has been written by W. W. Jacobs. Firstly, I will tell you about the introduction. Basically, this is a story full of horror. The atmosphere of mystery suits the theme and incidents of the play. It deals with the magical powers of a monkey's paw. इस चैप्टर में एक पा को डिस्क्राइब किया गया है जिसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं एंड ओल्ड इंडियन फकीर हैज़ पुट अ स्ट्रेंज स्पेल ऑन द पा. इट कैन फुलफिल 3 डिफरेंट विशेज़ ऑफ 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स. मीन्स ये 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की 3 डिफरेंट विशेज़ को फुलफिल कर सकता है. It proves that man's destiny is very powerful. If anybody tries to change his destiny, he has to suffer a lot. The story of this play is in 3 parts and there is a lot of suspense in the story. The play is very beautifully constructed and while reading it we feel frightened. We move in an atmosphere of mystery and supernaturalism. Now come to the summary part. Mr. and Mrs. White with their son Herbert live in a small cottage in an out-of-the-way place. The members of the family love one another very much. It is a cold winter night. Mr. White and his son are playing chess. In this story, Mr. and Mrs. White are 2 characters. They live in a small cottage and the members of the family love one another very much and the weather is very cold winter night. Or Mr. White and his son both are playing chess. Mr. White is losing in the game. Herbert is satisfied with the move that he has made. Mr. White जो है chess में lose कर रहे हैं game को and Herbert is very happy that he is playing very good. There is a shaded lamp on the table. The door is tightly shut. The curtains of the window are drawn. But a fast wind is blowing outside. The sound of the whistling of the wind can be heard. Mr. and Mrs. White and their son Herbert all are waiting for a family friend. Means in this chapter में Mr. and Mrs. White and उसका son Herbert इंतज़ार कर रहे हैं अपने एक फैमिली फ्रेंड का. वो आर्मी मैन है एंड हिज नेम इज़ सर्जन मेजर मॉरिस. वो इंडिया से वापस आ चुका है. द वाइट्स आर फेड अप विद देयर लोनली लाइफ इन दिस रिमोट प्लेस. और जो मिस्टर वाइट एंड हिज फैमिली जो है अकेले रहकर फेड अप हो चुकी है. मिस्टर वाइट इज़ एंग्शियस अबाउट पेइंग बैक अ डेब्ट ऑफ £200 फॉर बाइंग द हाउस in which they live. Herbert works in a factory which makes electrical goods and he is very affectionate towards his parents. एंड इन दिस चैप्टर में मिस्टर वाइट जो है वो बहुत एनेक्शियस है कि उसने अपने जो नया घर ख़रीदा है उसके £200 अभी पे करने हैं. और उसका सन जो है हर्बर्ट एक फैक्ट्री में काम करता है विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स. उसको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव है और अपने फादर को ये श्योरिटी भी देता है कि वो बहुत हार्डवर्क करेगा और जितना भी उसने मनी ली है हाउस के लिए वो सारी की सारी पे करेगा. आफ्टर सम टाइम अ नॉक एट द डोर इज़ हर्ड. सर्जन मेजर मॉरिस एंटर्स देयर हाउस. और जो उनका फैमिली फ्रेंड था जिसका वो वेट कर रहे थे वो मेजर मॉरिस आ जाता है. हिज लेफ्ट आर्म इज़ मिसिंग. ही हैज़ लॉस्ट इट इन द वॉर एंड ही हैज़ सर्व्ड इन इंडिया. उसको काफ़ी नॉलेज है इंडियन फ़कीर्स की, इंडियन सुपरस्टिशंस की एंड मैजिक की. और जो वाइट्स हैं एंड सर्जन मेजर मॉरिस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर. पहले वो बेकने में वेदर की बातें करते हैं. आफ्टर दैट में वाइन पीते हैं. उसके बाद वो ब्लैक आर्ट की बातें करनी शुरू कर देते हैं. Morris tells the whites that he has a mysterious monkey's paw. It is a dry paw. A spell has been put up on it by an Indian fakir. According to Sergeant Major Morris कि उसके पास एक ऐसा mysterious monkey's paw है जिसके ऊपर एक मैजिशियन एक इंडियन फ़कीर ने उसके ऊपर जादू किया है, स्पेल किया है. ये प्रूव है कि फेट जो है ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को कंट्रोल करती है. बट
मंकीज़ पास जो है वो 3 विशेज़ जो है फुलफ़िल कर सकता है 3 डिफरेंट पर्सन की। मॉरिस कहता है कि दैट द फर्स्ट ऑनर हैड हिज 3 विशेज़ ग्रांटेड। अकॉर्डिंग टू मॉरिस कि उसका जो फर्स्ट ऑनर था मंकीज़ पा के उसकी 3 विशेज़ जो है फुलफ़िल हुई थी, बट हिज थर्ड विश वाज फॉर डेथ, और उसकी जो थर्ड विश थी डेथ थी, जो उससे ही उसे ये मंकीज़ पा मिला है। The fulfillment of the wishes brings grief to the person concerned. Morris wanted to sell the monkey's paw to someone, but he didn't have a customer. But इस टाइम मेजर मॉरिस इसके रिजल्ट्स को देखकर वो इसको सेल करना चाहता है, but he didn't have a customer. By chance, Morris throws the monkey's paw into the fire. Mr. White feels interested in the powers of the monkey's paw. मिस्टर वाइट को बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर, मंकी स्पा की पावर्स के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टेड फील करते हैं। सो ही एट वंस टेक्स इट आउट ऑफ द फायर, वो जल्दी से आग से इसको बाहर निकाल देते हैं। बट सर्जन मेजर मॉरिस मिस्टर वाइट को वार्न भी करता है कि मंकी स्पा को यूज़ करने के डेंजर्स भी हो सकते हैं। ही आस्क हिम नॉट टू हैव इट, बट मिस्टर वाइट इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मैं ये मंकी स्पा मुझे चाहिए। अनविलिंगली मॉरिस जो है उनको ये पॉ देने के लिए अग्री कर जाता है। देन ही टेल्स मिस्टर वाइट हाउ टू होल्ड द पॉ इन हिज हैंड वाइल मेकिंग द विश। आफ्टर दैट मॉरिस जो है चला जाता है, और जाने से पहले वो मिस्टर वाइट को मंकी स्पा के यूज़ करने के डेंजर्स के लिए वार्निंग भी दे जाता है। बट मिस्टर वाइट इज़ वेरी हैप्पी टू हैव द मंकीज़ पॉ। वो काफ़ी एक्साइटेड है इसे पाकर। एंड हर्बर्ट हैज़ नो फेथ इन द पावर ऑफ द मंकीज़ पॉ। वो अपने फादर का मजाक भी उड़ाता है कि तुम्हें इन पावर्स में यकीन है। एंड ही हैज़ टू गो ऑन द नाइट ड्यूटी, और ड्यूटी से जाने से पहले वो अपने फादर को कहता है कि चलो विश कर लो फॉर 200 पाउंड, सो दैट द डेप्ट ऑफ द 200 पाउंड्स माइट बी बेड, कि शायद 200 पाउंड्स जो है पे हो जाए बिकॉज ऑफ दिस पॉ। मिस्टर वाइट होल्ड्स द पॉ इन हिज हैंड एंड मेक्स द विश, और उसी टाइम मिस्टर वाइट जो है पॉ को अपने हैंड में होल्ड करते हैं और डिज़ायर मांगते हैं, विश मांगते हैं। एंड as a result, there is a crash on the piano. At the same time, Mr. White gives out a cry. He lets the paw drop. The paw makes some movement in his hand. जैसे ही ड्यूरिंग द विश मिस्टर वाइट विश को मांगते हैं, उसी टाइम क्या होता है, पॉ जो है मूवमेंट करने लग जाता है, और डर के मारे जो है वो पॉ को नीचे गिरा देते हैं। एंड देयर इज़ नो मनी इनसाइड, और कोई भी मनी सामने नहीं होती, तो सारे डिसअपॉइंट फील करते हैं। हर्बर्ट की ड्यूटी जो है शुरू होती है मिडनाइट में, और ड्यूटी से जाने से पहले वो मंकीज़ पा का मजाक भी उड़ाता है। ही मेक्स फन ऑफ द मंकीज़ पा। He tells his father that he will find 200 pounds tied up in the middle of the bed. After the departure of the Herbert, Mr. White closes the door and locks it up from inside. और जाने के बाद मिस्टर वाइट जो है डोर क्लोज कर देते हैं और लॉक लगा देते हैं। He finds the upper bolt rather stiff and then he begins to see faces in the fire. After that क्या होता है कि जो ऊपर बोल्ट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है लगाने में, अटकती है वो, और उसके बाद क्या है फायर में उसे अलग अलग से चेहरे दिखाई देते हैं। मिसेस वाइट अपने हस्बैंड को कहती है कि टू स्पेंड द नाइट कामली। अगला दिन आ जाता है। द टेबल इज़ लेट फॉर द ब्रेकफास्ट। हर्बर्ट की उम्मीद की जा रही है कि अब वो घर आने वाला होगा ड्यूटी से, और मिस्टर वाइट कहता है कि हर्बर्ट जो है मस्ट बी नियर द ग्रेवयार्ड। ही सेज दैट ही कुड नॉट स्लीप द प्रीवियस नाइट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ द मंकीज़ पा। वो उसको कहते भी हैं मिसेस वाइट को कि मैं सही ना सो नहीं पाया क्योंकि मैं मंकीज़ पा के बारे में सोचता रहा। दे टॉक ऑफ द मंकीज़ पा एंड द अमाउंट ऑफ 200 पाउंड्स। मंकीज़ पा के बारे में बातें कर रहे हैं, 200 पाउंड्स की जो विश की है उसकी अमाउंट के बारे में वे बातें डिस्कस कर रहे हैं। इन द मीन टाइम अ लेटर इज सीन टू ड्रॉप इन द लेटर बॉक्स। उसी टाइम क्या होता है, एक ड्रॉ लेटर बॉक्स में एक लेटर आती है। द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर। अ लेटर कंटेनिंग द रिसीट फॉर इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 200 पाउंड्स इज रिसीव्ड। और उस लेटर में 200 पाउंड्स जो है रिसीविंग की एक के बारे में लिखा हुआ है। He does not bring a check for this amount. They again start waiting for their son. उसके बाद वो फिर से इंतज़ार करने लग जाते हैं अपने बेटे का। Very soon they hear the mysterious movements of a stranger outside their house. तभी क्या होता है, उन्हें अजीब सी mysterious movements की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है घर से बाहर। He has come from the firm where Herbert is employed. तभी क्या होता है, कौन आता है, जो हर्बर्ट के ही काम करता है वो लेके आता है। He brings the sad news that their son Herbert is caught in the factory wheels and is killed.
और उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हर्बर्ट जो है फैक्ट्री के व्हील्स में ही कट के मर गया। एंड द फर्म हैज़ सेट ए चेक फॉर £200 एज कंपनसेशन फॉर हिज सर्विसेज टू द फर्म। और £200 उसको एज ए कंपनसेशन मिलते हैं उसकी सर्विसेज के लिए जो उन्होंने फर्म के लिए हर्बर्ट ने की थी। इस तरह से उनकी विश £200 की जो है फुलफिल हो गई। बट दे हैव लॉस्ट देयर सन। Mr. and Mrs. White feel terribly shocked. After the death of their son, Mr. and Mrs. White feel very lonely and wretched. अब उनको अपनी ज़िंदगी में जीने का कोई मोटिव नज़र नहीं आता। वन नाइट मिसिस वाइट रिमेंबर्स सेम मंकीज़ पा। तो एक रात को मिसिस वाइट को फिर वही मंकीज़ पा के बारे में याद आता है और उसको लगता है कि अभी 2 विशेज़ जो है फुलफ़िल होनी बाकी है। She asked the husband to make a wish with the monkey's paw for the return of their son to life. तो वो अपने हस्बैंड को कहती है मिस्टर वाइट को कि मंकीज़ पा के अंगेज दोबारा विश करे और उसका जो बेटा है वो फिर से ज़िंदा होकर वापस आ जाए। मिस्टर वाइट डज नॉट अग्री इन द बिगनिंग बट मिसिस वाइट जो है अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि वो ऐसा करे। ही फियर्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू बियर द साइट ऑफ द सन विथ अ कट बॉडी। उसको डर है कि वो अपने बेटे की कटी हुई बॉडी को सही तरह से नहीं देख पाएगा। बट शी प्रेसेस हिम हार्ड। वो उसको फोर्स करती है तो वो मिस्टर वाइट जो है एग्री कर जाता है और जो उसकी सेकंड विश थी कि हर्बर्ट वापस आ जाए ज़िंदा होकर, वो मंकीज़ पा के थ्रू विश कर देता है। Soon a loud knocking is heard at the door of their house. Mrs. White is certain that her son Herbert has come. तभी लाउड नॉकिंग की आवाज़ आने लग जाती है और मिसिस वाइट को ये यकीन है कि शायद उसका बेटा ही ज़िंदा होकर वापस आया होगा। She wants to open the door. Mr. White tells Mrs. White not to open the door lest she should see the ghost of Herbert with the mutilated body. तो मिस्टर वाइट जो मिसेस वाइट को कहते हैं कि डोर मत खोलो अदरवाइज तुम्हें हर्बर्ट का घोस्ट ही देखना पड़ेगा विद अ म्यूटिलेटेड बॉडी। म्यूटिलेटेड मीन्स कट। द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर। नॉकिंग जो है और लाउड होने शुरू हो जाती है। मिसिस वाइट स्ट्रगल्स विद द अपर बोल्ट विच इज़ वेरी स्टिफ। और मिसिस वाइट स्ट्रगलिंग करी जा रही है बोल्ट को खोलने का बट दैट इज़ वेरी स्टिफ। शी इज़ नॉट एबल टू ओपन द डोर। मिस्टर वाइट इन द मीन टाइम मेक्स अ थर्ड विश विद द मंकीज़ पा। और जहाँ मिसिस वाइट डोर खोलने की कोशिश कर रही है, बोल्ट खोलने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मिस्टर वाइट जो है थर्ड विश कर देते हैं मंकीज़ पा के थ्रू एंड ही विशेज़ हर्बर्ट डेथ। एज ही मेक्स द विश द नॉकिंग स्टॉप्स। जैसे ही वो थर्ड विश करते हैं नॉकिंग होनी रुक जाती है। मिसिस वाइट ओपन्स द डोर। मिसिस वाइट ने डोर खोला बट हर्बर्ट इज़ नॉट टू बी सीन। द इफेक्ट ऑफ द थर्ड विश हैज़ टेकन प्लेस। देयर इज़ नथिंग बट मूनलाइट एंड एम्प्टीनेस आउटसाइड। और डोर खोलने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं था, जस्ट मूनलाइट एंड एम्प्टीनेस देयर। अगर आपको ये समरी समझ आई होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।